Hello students, I hope all of you are doing good. Let's start today's chapter, moving ahead with Scratch. Learner's outcome about Scratch, various blocks in Scratch, adding a new sprite, setting the sprite position on the stage, backdrop of the stage and changing the costume of sprite. Getting started. In the previous class, you have learned about Scratch 3, a visual programming language available for free. So, on the basis of prior knowledge, label the Scratch window components. देखिए बच्चों, आपने लास्ट क्लास में भी स्क्रैच 3 के बारे में पढ़ा था, तो अपनी प्रायर नॉलेज के बेसिस पे आपने ये जो स्क्रैच विंडोज़ के कंपोनेंट्स है ना, उनको लेबल करना है, ओके? एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट बिकॉज you have already learned about this in the previous class, okay? Let's learn some more interesting things about Scratch in this chapter. So let's get started. About Scratch. Scratch is developed by Massachusetts Institute of Technology, MIT, Cambridge, USA. Scratch is a visual tool which children can use to learn programming in an exciting way. In Scratch, sprites are objects that perform actions in a Scratch project. Scratch provides a number of inbuilt sprites. By default, the cat sprite is selected in Scratch, which is present in the middle of the stage. You can give instructions to a sprite, telling it to move or interact with other sprites. To tell a sprite what to do, you snap together the given blocks into stacks called scripts or program. Scratch को डेवलप किया है MIT के द्वारा, जो है आपकी कैम्ब्रिज USA में. ये विजुअल टूल है जिसमें बच्चे प्रोग्रामिंग सीखते हैं बहुत ही एक्साइटिंग वे में. इसमें आपके स्प्राइट्स होते हैं, आपको पता है स्प्राइट्स आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी स्क्रैच प्रोजेक्ट में. इसमें आपके पास बहुत सारे इनबिल्ट स्प्राइट्स हैं. वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कैट स्प्राइट होती है जो आपकी सिलेक्टेड होती है, ओके? आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं स्प्राइट को, उसको बताते हैं किस तरह से मूव करना है या दूसरे स्प्राइट के साथ इंटरेक्ट करना है, ओके? तो ये बताने के लिए स्प्राइट को कि क्या करना है, आप क्या करते हैं साथ में जो गिवन जो ब्लॉक्स होते हैं आप उनको स्नैप करते हैं स्टैक्स में, जैसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट या फिर प्रोग्राम्स, ओके? Working with different blocks. We know how to work with motion blocks. Let's learn about some more blocks in the Scratch. देखिए हमने motion block के साथ काम किया है. अब हम कुछ और blocks के बारे में जानेंगे. सबसे पहले looks blocks. In Scratch, you can change the appearance of the sprite under the looks block menu in the blocks palette. These are highlighted with purple shade. Selecting the looks block in the blocks menu will provide various blocks to change the look, color and size of the sprite. तो स्क्रैच में आप जो है स्प्राइट का अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं अंडर लुक्स ब्लॉक मेन्यू, ओके? ये आपके हाईलाइटेड होते हैं पर्पल शेड में. तो जैसे कि आपने लुक्स ब्लॉक को सिलेक्ट किया ब्लॉक्स मेन्यू में, तो ये आपको अलग अलग ब्लॉक्स प्रोवाइड करेगा जिससे आप अपने स्प्राइट के लुक, कलर और यहाँ तक की साइज भी चेंज कर सकते हैं, ओके? तो चलिए देखते हैं ब्लॉक एंड उनके फंक्शन. Say hello for 2 seconds. इसका फंक्शन क्या है? Displays a speech bubble with the text for the specified number of seconds. ये speech bubble डिस्प्ले करता है जो भी यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई किया जाएगा. जैसे कि यहाँ पे 2 seconds है तो 2 seconds तक होगा, ओके? Say hello. The block gives its sprite a speech bubble with the specified text. The speech bubble remains until another speech or thought block is activated or the stop sign is pressed. तो ये जो ब्लॉक है ये अपनी स्प्राइट को स्पीच बबल देता है जो भी यहाँ पे स्पेसिफाइड टेक्स्ट होता है, लाइक हेलो है तो हेलो. तो स्पीच बबल आपका तब तक रहेगा जब तक कि दूसरा स्पीच या थॉट ब्लॉक आपका एक्टिवेट नहीं हो जाता, ओके? नेक्स्ट इज थिंक फॉर 2 seconds. डिस्प्लेज अ थॉट बबल विद द टेक्स्ट फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेकंड्स. ये थॉट बबल को शो करता है जो भी यहाँ पे टाइम आपका सेकंड्स में स्पेसिफाई किया रहता है, ओके? नेक्स्ट इज थिंक. The block gives its sprite a thought bubble with a specified text. The thought bubble remains until a speech or thought block with its empty text block is activated or the stop sign is pressed. ये जो ब्लॉक है ये अपने स्प्राइट को एक थॉट बबल देता है जो भी यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिफाइड होता है, लाइक यहाँ पे स्पेसिफाइड है वो HMM वही आपका शो करेगा, ओके? और ये आपका थॉट बबल तब तक रहेगा जब तक कि कोई बबल या जो थॉट ब्लॉक है अपने एम्प्टी टेक्स्ट ब्लॉक के साथ एक्टिवेट नहीं हो जाता, ओके? नेक्स्ट इज चेंज साइज बाय 10. द ब्लॉक चेंजेस द साइज ऑफ इट्स स्प्राइट बाय द स्पेसिफाइड अमाउंट. द डिफॉल्ट स्प्राइट साइज इज 100. साइज वैल्यूज बिलो दिस परसेंटेज आर फॉर श्रंकन स्प्राइट्स एंड साइज वैल्यूज अबव आर फॉर ओवरसाइज स्प्राइट्स, ओके? तो जैसे कि आप चेंज साइज बाय 10 ब्लॉक ये क्या करता है कि साइज चेंज करता है स्प्राइट का. वैसे तो बाय डिफॉल्ट 100 है, इससे अगर बिलो जाएगा इस परसेंटेज से वो यूज़ किए जाते हैं श्रंकन स्प्राइट्स के लिए, और इससे ज़्यादा अगर आपकी वैल्यू जाएगी तो ओवरसाइज स्प्राइट्स के लिए होता है, ओके? नेक्स्ट इज चेंज कलर इफेक्ट बाय 25.
The block modifies the specified effect on its sprite by the specified amount. There are 7 different effects to choose from: color, swirl, pixelate, mosaic, brightness and ghost. ये जो ब्लॉक है ये मॉडिफाई करता है स्पेसिफाइड इफेक्ट को स्प्राइट में, जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट होगा, लाइक जो भी आप यहाँ पे अमाउंट स्पेसिफाई करेंगे. 7 डिफरेंट इफेक्ट्स है जिसमें से आप चूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको गिवन है. ओके, नेक्स्ट इज शो दिस ब्लॉक डिस्प्लेज द स्प्राइट इन केस इट इज हिडन. अगर स्प्राइट आपका हिडन है तो ये जो ब्लॉक है वो स्प्राइट को शो करता है, डिस्प्ले करता है. नेक्स्ट इज हाइड. दिस ब्लॉक हाइड्स द स्प्राइट इफ इट इज विजिबल. इफ द स्प्राइट इज ऑलरेडी हिडन नथिंग हैपेंस. अगर आपका स्प्राइट विजिबल है तो इसको हाइड कर सकता है, बट वो अगर वो ऑलरेडी हिडन है तो फिर कुछ नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट इज लर्न बाय डूइंग. लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग लुक ब्लॉक्स ऑन अ स्प्राइट. ओके, सो ये एक्टिविटी आप करेंगे. ओके, स्प्राइट गुड मॉर्निंग कह रहा है और साइज एंड कलर जो है स्प्राइट का वो चेंज हो गया है. ओके, pen blocks. The pen blocks are green in color. Remember that. These blocks draw a trail as the sprite moves on the stage. Okay. Now brainstorm. How will you move the sprite 100 steps but in backward direction? आपको sprite को move कराना 100 steps लेकिन backward direction में. तो आप कैसे करेंगे? The blocks in the pen block menu are used to draw on the stage. They add a pen to the sprite that can draw different figures on the stage. These blocks can change the color and size of the drawing. In Scratch 3, you have to add pen blocks to the block category. To do so, follow the given steps. अच्छा देखिए, जो ब्लॉक्स होते हैं ना आपके पेन ब्लॉक में, उनको यूज़ किया जाता है ड्रॉ करने के लिए स्टेज पे. ये पेन ऐड करते हैं स्प्राइट में जो डिफरेंट फिगर्स को ड्रॉ कर सकता है स्टेज पे. ये जो ब्लॉक्स हैं एक साइज या कलर जो है ड्राइंग का उसको चेंज कर सकते हैं. स्क्रैच 3 में आपने क्या करना है, ऐड करना है पेन ब्लॉक्स को ब्लॉक कैटेगरी में. तो देखिए कैसे करेंगे. स्टेप 1, क्लिक ऑन द ऐड एक्सटेंशन बटन. स्टेप 2, क्लिक ऑन पेन ऑप्शन. तो देखिए आप क्या करेंगे, ऐड एक्सटेंशन बटन पे क्लिक करना है, देन आप पेन ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करेंगे. ओके, सम कॉमन ब्लॉक्स ऑफ द पेन ब्लॉक मेन्यू आर, दिस इज इरेज ऑल ब्लॉक, क्लियर्स द स्क्रीन. ऑफ कोर्स इरेज लिखा है तो स्क्रीन को क्लियर करेगा. देन स्टैम्प, क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द स्प्राइट. ये डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करेगा स्प्राइट की. देन पेन डाउन, it will draw a trail wherever the sprite moves on the stage. The color, width and shade of the trail can be changed using other independent blocks. ये क्या करेगा, एक ट्रेल ड्रॉ करेगा जब भी स्प्राइट जो है स्टेज पे मूव करेगा. आप कलर, विड्थ और जो शेडेड ट्रेल का उसको चेंज कर सकते हैं. ओके, पेन अप. दिस ब्लॉक स्टॉप्स द क्रिएशन ऑफ अ ट्रेल. अब ये क्या करेगा, ट्रेल का जो क्रिएशन हो रहा है उसको स्टॉप करेगा. ओके, चेंज पेन कलर बाय 10. इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ पेन बाय द स्पेसिफाइड वैल्यू. अब जो पेन का कलर है उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करता है जो भी हम यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे. ओके, चेंज पेन साइज बाय 1. इट चेंजेस द साइज ऑफ पेन बाय द स्पेसिफाइड वैल्यू. ये पेन के साइज को चेंज करेगा जो भी हम वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग. ओके, लर्न बाय डूइंग. लेट्स लर्न हाउ टू ड्रॉ अ लाइन स्क्रैच. लुक एट द कोड एंड इट्स आउटपुट. ओके, देखिए यहाँ पे आपको कोड गिवन है. ओके, तो इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं स्क्रैच पे. राइट, ड्रॉइंग अ ट्रायंगल. टू ड्रॉ अ ट्रायंगल यूज द फॉलोइंग स्टेप्स. स्टेप 1, पेन मस्ट बी इन ड्रॉइंग पोजिशन, दैट इज पेन डाउन. स्टेप 2, point in right direction, value 90. Step 3, move some steps. Step 4, turn by 120 degrees. Turn angle is 360 divided by 3 sides of triangle is equals to 120. Okay, then step 5, move some steps. Step 6, turn by 120 degrees. And 7, move some steps. Okay, आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है. देखिए सबसे पहले तो हमें पेन जो है आपका पेन डाउन पोजीशन में होना चाहिए, ड्राइंग पोजीशन पे. ओके, पेन डाउन होगा तभी वो ड्रॉ करेगा. फिर हम पॉइंट करेंगे राइट डायरेक्शन में, वैल्यू गिवन है 90. फिर कुछ स्टेप मूव करना है, फिर 120 डिग्री से टर्न करना है. ओके, देन कुछ स्टेप मूव करेंगे, देन अगैन टर्न करेंगे 120 डिग्री से. ओके, देन मूव सम स्टेप्स. नाउ आपका ट्रायंगल आपका बन चुका है. ओके, नोट, whenever you rotate left to right, both times the rotation direction must be same. जब भी आप रोटेट करते हैं लेफ्ट या राइट, दोनों ही टाइम जो रोटेशन डायरेक्शन है दैट शुड बी सेम. ओके, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग. राइट द स्क्रिप्ट टू ड्रॉ अ स्टार एंड सर्कल स्क्रैच. आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, मतलब किस तरह से आप स्टार या सर्कल को ड्रॉ करेंगे उसके लिए. राइट, क्विक फैक्ट, यू कैन डुप्लीकेट अ ब्लॉक बाय राइट क्लिकिंग ऑन द ब्लॉक एंड सिलेक्टिंग डुप्लीकेट फ्रॉम द मेन्यू. आप ब्लॉक को डुप्लीकेट कर सकते हैं, आपको जस्ट राइट क्लिक करना है ब्लॉक पे और डुप्लीकेट को सिलेक्ट करना है. ओके, ब्रेनस्टॉर्म. ऑन विच बटन यू क्लिक टू ऐड एक्सटेंशंस इन योर स्क्रैच प्रोजेक्ट. आई होप आपको ये आंसर पता होगा. ओके,
Next is sound block. Sound blocks are pink in color. Sound blocks are used to play and hear a sound in Scratch project. Sound block pink color में होते हैं, and of course sound जैसा इनका नाम है तो हम sound को play या hear कर सुनने के लिए इनका use किया जाता है. Okay. Now block and their function. Start sound meow. It plays a selected sound from the drop down list without pausing the script. ये जो भी sound हमने select किए उसको ये play करता है. Okay. Play sound meow until done. Plays the sound by pausing the script until the sound has finished playing. Okay. ये sound को play करेगा but ये script को pause कर देगा जब तक कि sound finish नहीं हुआ है. Okay. Stop all sounds. Used to stop all sound being played on all sprite. जितनी भी sprites पे आपके sound play हो रहे हैं उनको ये stop करेगा. Okay. Next is event block. An event is a happening which occurs due to some other things that happen before it. So events block actually control how the blocks in a script will start to run if a particular action is done. Events blocks control events and the starting of scripts. They are yellow in color. अब आपके events जो block होते हैं yellow color में होते हैं, okay? और event आपका क्या होता है happening होता है जो आपका होता है कुछ due to some other things जो आपकी पहले हुई हैं, राइट? तो इवेंट्स ब्लॉक एक्चुअली कंट्रोल करते हैं कि हाउ द ब्लॉक्स इन अ स्क्रिप्ट विल स्टार्ट टू रन, किस तरह से वो रन होना स्टार्ट होंगे अगर कोई पर्टिकुलर एक्शन किया गया है तो. ओके. नाउ ब्लॉक्स एंड देयर फंक्शन. व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, दिस ब्लॉक एक्टिवेट्स द स्क्रिप्ट व्हेन द ग्रीन फ्लैग और गो बटन इज क्लिक. ये ब्लॉक जो है ये स्क्रिप्ट को एक्टिवेट करता है जब ग्रीन फ्लैग या गो बटन को क्लिक किया जाता है. When space key pressed, this block activates the script when the chosen key is pressed. You can choose from the given keys option. ये block जो है script को activate करेगा जब ये जो chosen key है उसको press किया जाएगा. Okay. When this sprite click, this block activates the script when you click the sprite. और ये script को activate करेगा block जब भी आप click करेंगे sprite को. Okay. In the code given below, the sprite will move, turn 15 degrees and play a sound on a mouse click. ओके. तो जो कोड आपको यहाँ पे गिवन है तो स्प्राइट जो है वो मूव करेगा एंड देन 15 डिग्रीज टर्न करेगा और एक साउंड प्ले करेगा ऑन अ माउस क्लिक, राइट? क्विक फैक्ट, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए स्क्रैच प्रोजेक्ट इज .sb3 एंड आई एम श्योर आपको पता है क्योंकि लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा था कि फाइल एक्सटेंशन आपके स्क्रैच प्रोजेक्ट का होता है .sb3, राइट? नाउ एडिंग अ न्यू स्प्राइट. When you open Scratch, the default sprite is a cat. You know that? The location of the sprite cat is at the center of the stage. Scratch provides 4 different options for adding sprite to your applications. These options are accessed through a choose a sprite button. जब भी आप Scratch open करते हैं default sprite आपका होता है cat जो आपके middle of the stage होता है, center of the stage होता है. तो Scratch में 4 आपके पास different options होते हैं जिससे आप sprite को add कर सकते हैं आपकी application में, okay? और इनको हम access करते हैं choose a sprite button के through. To add a sprite, follow the given steps. Step 1. Click on Choose a Sprite button in the Sprite's info pane. Step 2. From the list, click on Choose a Sprite option. A Choose a Sprite window opens. It shows the thumbnails of the available sprites. Step 3. Select a category for the sprite. By default, all is selected. Step 4. Click on a sprite you want to add. Here we have added a butterfly. Notice that there are now two sprite thumbnails in the sprite's info pane. अब आपको देखिए स्प्राइट ऐड करना है, ओके? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चूज अ स्प्राइट बटन पे क्लिक करना है, फिर लिस्ट में से आपको चूज अ स्प्राइट ऑप्शन पे क्लिक करना है. अब ये आपकी विंडो ओपन हो गई है. देखिए बहुत सारे स्प्राइट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनकी थंबनेल आपको शो हो रहे हैं, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने बटरफ्लाई चूज़ कर दिया, ओके? बाय डिफ़ॉल्ट ऑल इज सिलेक्टेड है, ओके? फिर जिस भी स्प्राइट को आप ऐड करना चाहते हैं क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे बटरफ्लाई ऐड कर दिया, ओके? नाउ 2 स्प्राइट थंबनेल्स आपके स्प्राइट्स इन्फो पेन में आ रहे हैं, राइट? आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इज क्विक फैक्ट. यू कैन डिलीट अ स्प्राइट बाय क्लिकिंग ऑन डिलीट बटन अपीयर्स ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द स्प्राइट आइकन आफ्टर सेलेक्टिंग द स्प्राइट. अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, आप स्प्राइट को डिलीट कर सकते हैं. जस्ट क्लिक करना है अपने डिलीट बटन पे, ओके? पहले आपको जैसे कि स्प्राइट को सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने डिलीट बटन को क्लिक करना है, right? Changing the costume of sprite. You can change how a sprite looks by giving it a different costumes. It can have 1 or more costumes, allowing it to change its appearance as the application executes. Each costume is assigned a unique name and number. In this example, we have selected butterfly as a sprite. It also has 2 costumes. हम देखिए स्प्राइट का जो कॉस्ट्यूम है उसे चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स हम दे सकते हैं.
एक या एक से ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स हो सकते हैं जिससे इसका जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो हर कॉस्ट्यूम को एक नंबर, यूनिक नंबर और नेम असाइन किया रहता है। ओके ओके, फॉर एग्जांपल अब जो हम ये प्रोजेक्ट, ये जो स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं, इसमें हम बटरफ्लाई एज अ स्प्राइट सेलेक्ट करेंगे। ओके, इसके 2 कॉस्ट्यूम्स हैं। नंबर 1, क्लिक ऑन कॉस्ट्यूम टैब्स, यू विल सी बटरफ्लाई 1-A, butterfly 1-B and butterfly 1-C costumes under the butterfly sprites costume list. 2. Click on butterfly 1-B costume. The new sprite costume is added on the stage as well as in the sprites list area. Okay, अब आप देखिए कॉस्ट्यूम टैब पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं कॉस्ट्यूम की, बटरफ्लाई 1-A, 1-B एंड 1-C। ओके, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 1-B कॉस्ट्यूम पे। आप देखिए ये जो न्यू स्प्राइट कॉस्ट्यूम है ऐड हो चुका है स्टेज पे और साथ ही साथ स्प्राइट लिस्ट एरिया में भी। ओके, नेक्स्ट इज स्प्राइट स्टेज। The stage is divided into different values of x and y. Each dot on the stage is made up of both x and y values. The x value determines the horizontal location of the sprite and ranges from -240 to 240, whereas the y value determines the vertical location or height of the stage and range from 180 to -180 degree. The middle of the stage has x and y coordinates as 0, 0. We can find out the x and y positions of the sprite on the stage by moving it on the stage and observe the change in the coordinates displayed on the stage. Okay, देखिए अगर ध्यान से देखिए आप यहाँ पे पिक्चर को नज़र आ रहा है, 4 डिफरेंट वैल्यूज़ में स्टेज डिवाइडेड है और ये 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं x एंड y की। हर डॉट जो है स्टेज में वो आपकी x और y वैल्यूज से बना है। x की जो वैल्यू है वो डिटरमिन करती है हॉरिजॉन्टल लोकेशन स्प्राइट की, एंड y है जिसकी वैल्यू आप रेंज है -240 से 240 तक, जबकि जो y वैल्यू है वो वर्टिकल लोकेशन या जो हाइट है स्टेज की वो उसको डिटरमिन करती है, जिसकी आपकी रेंज है 180 से -180 डिग्री तक। और जो मिडल है स्टेज का x एंड y कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे हैं 0, 0। ओके, तो x एंड y पोजीशंस का पता लगा सकते हैं स्प्राइट की जब वो मूव करेगा स्टेज पे। ओके, द बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज। A backdrop is one out of many backgrounds available for the stage in Scratch. They can be named, edited, created and deleted, but the stage must always have at least one backdrop. Otherwise, the stage would not have an image to resemble. Choose a backdrop button is used to change the background of the stage. There are 4 different options for changing the backdrop of the stage. They are choose a backdrop, paint, surprise, upload, backdrop. तो देखिए backdrop आपका क्या होता है, जो आपके बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं उनमें से एक है जो आपका अवेलेबल होता है स्टेज के लिए। तो इनको नेम किया जा सकता है, नेम एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बट स्टेज होना चाहिए, एटलीस्ट एक बैकड्रॉप होना चाहिए। ओके, स्टेज पे, अदरवाइज जो स्टेज है दैट वुड नॉट हैव एन इमेज टू रिजेंबल। ओके, तो चूज अ बैकड्रॉप बटन से आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड स्टेज का चेंज कर सकते हैं। 4 डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं बैकड्रॉप को चेंज करने के। ओके, जो यहाँ पे आपको गिवन है। So to change the backdrop of the stage, follow these steps. Step 1. Click choose a backdrop icon on the bottom right corner of the window. The choose a backdrop window appears. Step 2. Click on the desired backdrop. The new backdrop will be added to the stage. Notice that the thumbnails of the backdrop appear in the sprites info pane. Okay. अब आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे choose a backdrop icon पे। Okay, फिर आपकी विंडो अपीयर हो गई है। फिर जो भी बैकड्रॉप आपको चाहिए इस पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए न्यू बैकड्रॉप आपका स्टेज पे ऐड हो चुका है। ओके, और थंबनेल भी आप बैकड्रॉप का देख सकते हैं जो कि स्प्राइट इन्फो पेन में आपका अपीयर हो रहा है। ओके, कंप्यूटर एटिकेट्स। While reading on a computer screen, never use a pencil or any solid pointer to point the text on the monitor screen. It may create permanent scratches on the screen. देखिए जब कभी भी आप कंप्यूटर स्क्रीन को रीड कर रहे हैं, कोई भी पेंसिल का यूज़ ना करें या सॉलिड पॉइंटर का किसी भी टेक्स्ट को पॉइंट करने के लिए, क्योंकि इससे फिर आपके स्क्रैचेस, परमानेंट स्क्रैचेस आ सकते हैं स्क्रीन पे। ओके, sum up. Scratch is a simple, fun-based visual programming language. Scratch projects are made up of small objects called sprites. Scripts are created by snapping blocks together. Looks blocks are used to control the appearance of a sprite. Sound blocks are used to control the sound function of a sprite. The blocks that are used to control how the blocks in a script will start to run if a particular action is done are known as events blocks. The values of x gives the horizontal location of the sprite. The value of y gives the vertical location of the sprite. Scratch provides 4 different options for adding sprites to application. I hope students आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। ओके, तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। ए पार्ट, fill in the blanks with the given hints.
Number 1, snapping the blocks together into stacks is called script. 2, when we start a Scratch, the sprite appears with a white backdrop. 3, the block dash controls the events and starting of the scripts. इसका आंसर होगा events. 4, purple colored blocks are dash blocks. These are looks blocks. Okay. And 5, by default the backdrop of the stage is white. Okay students, now you will do practice of the remaining questions of this chapter.